Hello. In the previous lectures, we have covered servlet overview architecture and architecture interface servlets and the servlet lifecycle, handling HTTP GET request, handling HTTP post request, redirecting request to other resources. Now we need to cover session tracking, cookies, session tracking with HTTP session. Let's have an understanding how servlet works before for our revision. Then we will move forward for the further new concepts. Now, how servlet works, we have introduced ourselves to this thing in the previous lecture. But still, let's have an overview of it. How servlets work is to get this we need to go for the some server side methods like the first and foremost is servlet loads the servlet class, servlet instantiate the servlet class, calls the init method passing the servlet config object, else calls the methods passing request and response object. The web container calls the destroy method when it needs to remove the servlet, such as the time of server swapping and deploying the project. So basically, there are the three steps. We load the servlet class, instantiate the servlet class, we call the initialize method and or service config object. Either servlet method is passed to the request and response object. So this figure has been discussed in a very detailed manner. And in servlet processing, the most important part is of containers, web containers. So web container is responsible to handle the request. Let's see how it handles. Map the request with the servlet in the web.xml file. Create request and response objects for this object. So what is the job of web container in the servlet lifecycle? It's map the request with the servlets in the web.xml file. Create request and response object for this request. Call the service method on the thread. Public service method, then the public service method internally calls the protected service method. See, understand what is protected service method. Protected service method mean to say that that method is only going to be used in that particular method only. Okay. If we initialize the servlet class, then the servlet class will extend to the classes in which we are developing some servlet objects. Then method should be protected. For this, we have a HTTP servlet class. We use to get method and generate response response as it passed to the client. Then after sending the response, web container release the request and request and response object, because overhead नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम पे. तो लेकिन जो सर्वलेट है वो पब्लिक हमेशा जो है जो लिखा जाता है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पब्लिक मेथड सर्विस पे लिखा जाता है, जिसमें आप सर्विस रिक्वेस्ट और सर्विस रिस्पांस को पुश करते हैं और फाइनली जो है ट्राई कैच मेथड लगता है और थ्रो करते हैं. सर्विस मेथड के अंदर हमेशा हम गेट रिस्पांस या पोस्ट रिस्पांस की बातें करते हैं, जो आप HTTP सर्वलेट क्लास में देखते हैं. तो ये था मतलब एक थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए. अब देखिए, एक आपका टॉपिक है कि ये बताया, एक आपका टॉपिक है यहाँ पे कि यहाँ तक तो हो गया था पोस्ट रिक्वेस्ट. अब ये रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज. अदर रिसोर्स के पास रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए उसके प्रोसीजर्स हैं. सबसे बड़ा प्रोसीजर है कि हम अदर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए वॉर फाइल्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? वॉर फाइल. वॉर फाइल जो होती है वेब आर्काइव फाइल होती है. वॉर फाइल जो होती है वो वेब आर्काइव फाइल होती है, और इसमें XML, JSP, इमेज, HTML, CSS हर तरीके की फाइल होती है. ठीक है. तो और हम क्या करेंगे कि वॉर फाइल सर्वलेट का बना लेंगे और उसी को डिप्लॉय कर देंगे जहां पे हमको जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. तो वॉर फाइल है क्या? वॉर फाइल contains all the contents of an application. It reduces the time duration for transferring the file.
वॉर फाइल क्या करती है? कंटेंट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, इट रिड्यूसेस द टाइम ड्यूरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द फाइल। अब इससे क्या फायदा होता है? ये आपका समय भी बचाती है। अब वॉर फाइल को समझ में आ गया कि हम अपने जो सिस्टम है जो जनरेट जो बनाया है उसको वॉर फाइल लिए और वॉर फाइल को डिप्लॉय कर दिए, फाइनली हर सिस्टम से कनेक्शन हो गया। तो सिस्टम को बनाते कहते हैं हाउ टू क्रिएट वॉर फाइल। द क्रिएट वॉर फाइल यू नीड टू यूज जार टूल ऑफ जेडीके। यू नीड टू नो जार टूल है, जावा आर्काइव टूल, जावा डेवलपमेंट किट में, उससे हम वॉर फाइल बनाते हैं और -c स्विच करते हैं जार फाइल, और इसके प्रोजेक्ट में हम जाते हैं और ये कमांड लिखने से हमें वो जार फाइल क्रिएट हो जाती है। जार CVF प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट का आपका नाम होगा, जो भी प्रोजेक्ट सर्वलेट का नाम होगा एक्चुअली .war, ठीक है, तो उसका वॉर बन जाएगा, उसको वहीं से एज इट उठा के रख लेंगे। और स्ट्रिंग सिंबल इसलिए यूज करते हैं कि हम जितने भी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है जावा में, ये जितने भी रिक्वायर्ड क्लास नहीं, जितने भी क्लास उस पैकेज में है वो हमारे उस फाइल में आर्काइव हो जाएंगे। अब ये जो वॉर फाइल है इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं कि भाई सर्वर की कंसोल पैनल पे जाए, वहां पे डिप्लॉय करते हैं, या मैनुअली किसी सर्वर फाइल में जाए और वहां के फोल्डर में सर्वर बनाते हैं। तो अगर हमको वॉर फाइल डिप्लॉय करना है अपाचे टॉमकैट सर्वर को मैनुअली, तो हम वेब डायरेक्टरी में जाते हैं और वहीं मैनुअली वॉर पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है अपाचे जो है एक वेब सर्वर है, इसको आप मेरे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पीसी पे उसको एक बार डिप्लॉय करके देखिए कैसे उसकी वर्किंग होती है। अब जब फाइल डिप्लॉय हो गई तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने पास टूल्स हैं, जार xzb प्रोजेक्ट नेम .war। ये देखो ये प्रैक्टिकल है, ये आप जब तक करोगे नहीं ना तब तक आपको थोड़ा सा अंदाजा नहीं रहेगा। तो रिक्वेस्ट की थोड़ा सा ना जार फाइल है जावा को समझने के लिए एक बार अपाचे इन्वायरमेंट को सेट करो। अब आते हैं जी, अब आते हैं कि वेलकम फाइल लिस्ट। वेलकम फाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आपसे पिछली सर्वलेट के लेक्चर्स में बताए थे कि सर्वर अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेता है कि अगर कोई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई तो उसको कैसे मैनेज करेगा। तो वो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, जो मैनेजमेंट है, उसको हम कहते हैं जी welcome file. Welcome file is the file that is invoked automatically by the server if you do not specify any file. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सर्वर लुक्स, अगर हम कोई भी नाम नहीं बनाते हैं सर्वर का तो बाय डिफॉल्ट वो वेलकम फाइल बनाती है। तो वेलकम फाइल में क्या होता है? इंडेक्स एचटीएमएल, इंडेक्स एचटीएम और जेएसपी, जितने टाइप्स ऑफ फाइल सर्वलेट रिस्पॉन्स में भेजेगा उतने टाइप के फाइल के नाम होते हैं। तो ये रहा जी वेलकम फाइल लिस्ट में इंडेक्स एचटीएमएल में, इंडेक्स एचटीएम में, इंडेक्स जेएसपी। अब आप इसको अगर ध्यान से देखते हो ये, तो आप स्पेसिफिक वेलकम फाइल नाम है तो वेब एक्सएमएल का, तो इसमें हर फाइल होगी, एचटीएमएल की फाइल होगी, एचटीएम, जेएसपी, जितने भी ऐसे जो हमको भी हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में जो भी यूज होगा वो काम किया जाएगा। और ये उसका बनाने का तरीका होता है। जैसे web.xml में वो चीजें कैसे बनेगी, तो web.xml में यूं बनेगी। और हमेशा जो प्रोजेक्ट है हमारा लोकल होस्ट, ये जो लोकल होस्ट इस 28888 है, ये वो पोर्ट है जहाँ पे हमारा सर्वर काम करता है और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं JRE पे, तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रन कर जाता है। एक तो वेलकम, फिर लोड और डिप्लॉय होके एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर वो लोड होता है स्टार्टअप पे, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रन कर जाता है। अब लोडअप स्टार्टअप एलिमेंट जो होता है क्या होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं प्री इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट। जो मैंने आपको फिगर दिखाया था कि कंटेनर अपने आप को पहले इनिशियलाइज करके रखता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के लिए, उसी को कहते हैं लोडअप ऑन स्टार्टअप इन वेबएक्स, ठीक है।
तो क्या होता है एडवांटेज की सर्वलेट इज लोडेड एट फर्स्ट रिक्वेस्ट, दैट मींस कंज्यूम्स मोर टाइम इन first request. If you specify the request load on the startup in WebXML, servlet will load project deployment time or server start, so it takes less time for the response first request. तो पहले वाले में तो थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि उसका इनिशियलाइजेशन हो जाती है पूरी, तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को लेके उस हिसाब से इनिशियलाइज कर देता है. Now, if you pass the positive value, the lower integer value servlet will be loaded before the higher integer value servlet. In other words, containers load the servlet in ascending integer value. Zero value will be loaded first, 1, 2, 3. तो फाइनली जीरो वैल्यू को लोड करके अपने आप को इनिशियलाइज कर लेता है, और सर्वर की जब रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर की रिक्वेस्ट आती है तो उसको उस वैल्यू से रिप्लेस करके पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस करके फिर हम मैनेज कर लेते हैं, या तो हम उसको नेगेटिव दे देते हैं जब सर्वर की रिक्वेस्ट आती है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक है कि हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें J2EE का वेब इन्वायरमेंट, ठीक, और उसके बाद जो है एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका क्या है कि सर्वलेट को हम किसी आईडी से बना दें. जैसे इक्लिप्स है, इक्लिप्स एक आईडी ही है जहाँ पे सर्वलेट और J2 जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन की डेवलपमेंट्स होती हैं. तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिप्स को डायरेक्ट करने के बाद कैसे डायनामिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसी का ये इसमें पूरा क्या कहते हैं उसको नोटिफिकेशंस है कि किस हिसाब से प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय करते हैं. तो ये सिर्फ एक J2E में प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है, क्योंकि ये सब इन्वायरमेंट क्रिएट कर आईडी के इंटीग्रेटेड डेवलप इन्वायरमेंट की बात ये होती है कि ये एक ही दफा बस आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और एक बार जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा हर बात में कनेक्शंस का बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है. एक बार आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो चीजें सब आसान हो जानी शुरू हो जाएगी, थोड़ा आपका ये काम आसान कर देता है प्रोग्रामिंग. अब बात करते हैं थोड़े से जो हमारे जो कोर्सेज में जो टॉपिक है, ये सेशन ट्रैकिंग और कुकीज और सेशन ट्रैकिंग है विद HTTP सेशन. तो एक कॉन्सेप्ट है सेशन ट्रैकिंग, एक कॉन्सेप्ट है कुकीज, और तीसरा कॉन्सेप्ट है सेशन ट्रैकिंग विद HTTP सेशन. तो ये चीज अभी हमने कवर किया कि रिक्वेस्ट को हम कैसे रिडायरेक्ट करते हैं अलग रिसोर्सेज में. तो हम फाइल बना लेते हैं, वेब फाइल, वार फाइल के थ्रू उसको इनिशिएट कर लेते हैं कहीं भी, ठीक है. अब आते हैं कि जी हमारा सेशन ट्रैकिंग जो है कैसे करते हैं सर्वलेट में. तो मैंने अभी तक आपको समझाया कि सर्वलेट कैसे काम करता है. तो अपने आप को इनिशियलाइज करता है, फिर लोड करता है, ठीक है. इनिशियलाइज करने की प्रोसेस को ही स्टार्टअप प्रोसेस करते हैं कहते हैं, फिर लोड करता है. इससे सर्वलेट फर्स्ट टाइम में तो ज्यादा समय लेता है, फिर धीरे धीरे दूसरा समय कम लगेगा, और वो समय में उतना पता नहीं चलता क्योंकि हमें जो है हमें वो समय पता नहीं चलता है क्योंकि इतना माइक्रो लेवल पे काम होता है. अब थोड़ा देखना है कि भाई सेशन कैसे मैनेज किया जाता है. सर्वलेट जो है, जो हमारा एडवांस टॉपिक है कि भाई सेशन क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, फिर फाइनली HTTP सेशन क्या होता है. तो ये जो चार फाइल्स हैं, ये जो चार जी है, ये हमारा मतलब इस सेशन की जो टेक्निक है, यही हमारा कोर्स है, ठीक है.
तो सेशन को ट्रैक करते हैं. सेशन सिंपली मीन्स अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम. सिंपल. ठीक है. सेशन ट्रैकिंग इज द वे टू मेंटेन स्टेट डेटा ऑफ एनी यूजर. इट इज आल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट इन सर्वलेट. ठीक है. HTTP protocol is stateless, so we need to maintain state using session tracking techniques. HTTP protocol जो है stateless है. तो ये जो HTTP protocol है stateless, so we need to maintain a state using session tracking techniques. अब ये HTTP protocol क्या करता है भाई? पहली बात आई हमको पता है HTTP protocol का काम क्या है. HTTP protocol क्या है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है. So each time user requests the server treats the request as a new request, so we need to maintain the state. Stateless होने की वजह से क्या होता है? पिछले रिक्वेस्ट उसको मतलब नहीं होता. हमेशा एक जो रिक्वेस्ट होती है वो नई सर्वर होती है. So we need to maintain the state of an user to recognize the particular user. आगे आइए. HTTP is state that mean अब HTTP क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर सेकंड रिक्वेस्ट करेगा, ऐसी चीजें चलती रहेंगी. तो सेशन ट्रैकिंग क्या है? To recognize the user, it is used to recognize the particular user. सेशन ट्रैकिंग का काम क्या होता है? सेशन ट्रैकिंग का काम होता है कि भैया इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट, रैंडम रिक्वेस्ट इधर उधर से आ रही है, तो एक ही क्लाइंट से कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ सेशन ट्रैकिंग टेक्निक की यूज करनी होती है. तो उसके 4 तरीके हैं काम करने के. एक है कुकीज, दूसरा हिडन फॉर्म फील्ड्स, URL रीराइटिंग, फिर आ रहा है HTTP सेशन. कुकीज, हिडन फॉर्म fields, URL rewriting और HTTP session. अब देखिए कुकीज क्या होता है. तो कुकीज is a small piece of information that is persisted between the multiple client requests. Simple. कुकीज क्या है? कि small piece of information that is persisted between the multiple client requests. It's as simple as that. Cookies क्या है? Cookies is a small piece of information that is persisted between the multiple client of information requests. A cookie has a name, a single value, an optional attribute such as comments path and domain qualifier, a maximum age and a version of number. How cookies works? Each request is considered as a unique request. Okay. In cookies techniques, we add cookies with response from the servlet. So cookies is stored in the cache of the browser. Very important. ऐसे समझो आप, जब आप Facebook लिखते, जब आप यहाँ पे लिखते हो ना कोई वेबसाइट का नाम जैसे facebook.com, फर्स्ट टाइम जब इनिशियलाइज होगा ना तो वहां से कुकी क्रिएट होगी. वो क्या करता है कुकी? ब्राउजर में एक तरीके से मैप ले लेता है, शॉर्टेस्ट मैप ले लेता है कि वो वेबसाइट कैसे कनेक्ट होगा. उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो तुरंत वो क्लिक हो जाता है. तो ये जो है, ये जो काम करने का तरीका है, ये कैसे मैनेज होता है? ये मैनेज होता है कुकी के सिरे. ठीक है. और ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है कुकी. After that, if request is sent by the user, cookie is added with request by default. Thus we recognize the old user. तो यही कुकी जो होता है क्योंकि हर रिक्वेस्ट का रास्ता उसके पास होता है, तो एक बाय डिफॉल्ट 2 काम होता है. एक कि वो बताता है कि ये जो रास्ता है उस यूजर का, ये रास्ता उस यूजर का है, एक रास्ता तीसरे यूजर का. तो अब जब रिस्पॉन्स दिया जाता है, और रिस्पॉन्स के चक्कर में चीजें जो होती हैं नॉर्मलाइज हो जाती है. अब देखिए कुकीज के टाइप्स क्या हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुकीज इन सर्वलेट्स. पहला है नॉन परसिस्टेंट कुकी और दूसरा है परसिस्टेंट कुकी. तो नॉन परसिस्टेंट कुकी क्या होता है कि भाई एक सेशन के लिए वैलिड है, हर समय हम यूजर, जब नया यूजर आएगा, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है तो हर सिस्टम के लिए वैलिड है. अब मल्टीपल कुछ कुकीज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेशन के लिए वैलिड होते हैं. जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन में अपने फेसबुक को ऑन कर रखा है, तब पहले से कुकी बन गया क्योंकि एप्लीकेशन पहले से लॉगिन है, हमेशा के लिए लॉगिन. तो वो चीजें जो है उस हिसाब से मैनेज होने शुरू हो जाएंगी. और जब तक यूजर कनेक्शन नहीं क्रिएट करेगा, मतलब अपने लॉग ऑथेंटिकेशन पासवर्ड से लॉग आउट नहीं हुआ, तब तक वो चीजें चलती रहेंगी. कुकी का एडवांटेज क्या है भाई? सिंपलेस्ट टेक्निक है स्टेट को मेंटेन करने का. आपका रास्ता आप मिल जाएगा, वो एक नंबर, न्यूट्रल नंबर मिल जाएगा, उस हिसाब से सर्वर को पता चल जाएगा कि भाई ये कोई रिक्वेस्ट आ रही है, बाद में हम चीजों को मैनेज कर लेंगे. और हमेशा ये क्लाइंट साइड मेंटेन होता है. कुकीज आपके एंड पे मैनेज होता है, जिससे सर्वर पे ओवरहेड भी नहीं रहता है.
डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने कुकीज को डिसेबल कर दिया ब्राउजर पे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्राउजर के फीचर्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और कुकीज का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कुकीज तो सेटिंग में जाइए। ये लिखे ना कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो तो ये जो है ना, यही कुकीज के काम होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्लियर क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री एंड ऑटो कंप्लीशन कुकीज अदर साइट डेटा। इसका मतलब क्या है? ये जो है यही वो कुकी है जो आपको कैश्ड इमेज एंड फाइल्स सम साइट्स, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने फ्री कर दिया। जब मैंने फ्री कर दिया तो यहाँ पे लिखा है ना, सम साइट में लोड स्लोली ऑन योर नेक्स्ट विजिट। इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट आवर की पूरी चीजें डिलीट कर दी। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि इस साइट ने कुकी बनाई होगी, वो सब तो मैंने डिलीट कर दी। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाना था कि जो कुकी होता है वो इस एंड पे होता है। अब देखो मैं ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगला जो पॉइंट है हमारा पढ़ने का कुकी का, कुकी के बाद वो है, इसमें देखो टाइमिंग थोड़ा ज्यादा ले रहा है ना। अब ये कुकी फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो टाइमिंग ज्यादा लेने का प्रोसेस है, ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये कुकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही है कुकी, ठीक। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमको पता चल गया कि तो हमेशा जानते हैं अगर सर्वर में क्या होता है कि जी सर्वर क्लास होती है, क्लास के थ्रू मैनेज होता है सब चीजें। तो क्लास के थ्रू कैसे मैनेज होगा? तो अब देखिए, तो जो क्लासेस कौन कौन सी हैं कुकी में, तो सबसे पहले बात यह है कि जावा डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी में कुकी क्लास होती है। ये जो है ये प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी कुकी को यूज करने के लिए। ये जो मेथड है ये कंस्ट्रक्ट करती है कुकी को। कुकी के अंदर स्ट्रिंग का नाम और स्ट्रिंग की वैल्यू पास की जाती है। कौन कौन से यूजफुल मेथड हैं? सेट मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी इन सेकंड्स, ठीक है, कितने देर में वो एक्सपायर करेगा। तो जो परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस वाला खेल है, यहाँ से गेट वैल्यू करता है कि क्या रिटर्न, यहाँ से वैल्यू लेता है कि भाई कौन से कुकी पे हम काम कर रहे हैं, कौन से कुकी हम बनाए हैं अपने सिस्टम पे, ये सर्वर को पता चलता है। सर्वर भी वैल्यू को लेता है, फिर स्ट्रिंग्स का नाम सेट किया जाता है, फिर उसकी वैल्यू को सेट किया जाता है। तो फाइनली ये कुकिंग की एक वर्किंग है, ठीक है। HTTP सर्वर रिस्पॉन्स इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, फिर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुकी कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट कुकी। कुछ नहीं, कुकी का क्लास लिया, उसमें एक नाम दिया, भाई सीखे, एक नई कुकी लगाया, यूजर का नाम लिखा और यूजर ने अपना नाम लिख दिया, बस कुकी क्रिएट हो गई, सिंपल। और उसको ऐड कर दिया रिस्पॉन्स में। जो आपने क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स के साथ कुकी आएगी, कुकी इनिशियलाइज करके कुकी अपने आप को इनिशियलाइज करके कुकी ना अपने आप को इनिशियलाइज करके फाइनली वो वैल्यू कर लेगी। फाइनली हमें अपने
अपने सिस्टम से सर्वर से क्लाइंट के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में सेट हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम डिलीट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कुकीज को। बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट्स नहीं चाहती हैं सिक्योरिटी वेबसाइट की कुकी जनरेट हो, तो उसको ओनली हम तो सिंपल सा कोड चला देते हैं कि भाई, तो, और कुकी को कैसे कि आप उसको डिलीट कर देते हैं क्लाइंट एंड पे। तो कुकी को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये उसका छोटा सा कोड है, जब हम काम करेंगे तब पता चलेगा। तो देखो, कोई भी सिंपल कुकी कैसे जनरेट होती है, भाई हमारा नेम गो है, सर्वलेट के पास गया तो नेम गो आया, सर्वलेट दो के पास गया और फाइनली यूजर के पास मिल गया। तो यूजर साइड जो है कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, यूजर कैसे कुकी बनाता है, उसी की सिंपल सा फॉर्मुलेशन है कि फॉर्म लिया सर्वलेट मेथड 1 का, उसको पोस्ट कर दिया और फाइनली वैल्यू दे दिया गो। तो यहाँ पे देखो वही कि किसी भी जावा सर्वलेट प्रोग्राम के लिए हमको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट सर्वलेट, फिर इनपुट सर्वलेट एचटीटीपी, फिर सर्वलेट का एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स बताना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर आपको ये देखना पड़ेगा जी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और उसमें चल रही कैसे चल रही चीजें। फिर फाइनली कंटेंट राइटिंग में आपको ये कुकी का प्रोग्राम फॉर्म एक्शन वाला जो हम अभी डिफाइन किए हैं उसमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और फाइनली हम एक सेकेंड जब सर्वलेट बनाएंगे और उसको वेब ऐप में, वेब ऐप जो हम करे थे कि हमारे को डिप्लॉय में काम आता है, उसे एक फाइल बनाएंगे और फाइनली हमारा जो आउटपुट आ जाएगा कुकी का। ठीक है, इसको करने से होगा, ये जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले कुकी को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद आप सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल बनाते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल बनाने के बाद आप क्या होता है उस उसकी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वलेट की लॉगिन और लॉग आउट के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो कुकी क्या करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है क्लाइंट साइड में कि तो कुकी क्या करता है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और क्लाइंट साइड पे। और ये वेब वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है कि भाई कितने क्या इंडेक्स है, लिंक क्या है, लॉगिन क्या है, सर्वलेट की लॉगिन क्या है, लॉग आउट कैसे हो रहा है सर्वलेट, प्रोफाइल क्या है सर्वलेट की, उसका डिप्लॉयमेंट स्टेटस। तो ऐसे चीजें चलती हैं, ऐसे चीजें चलती हैं आपके सर्वलेट में कि कैसे आप मेटा कैरेक्टर के थ्रू फाइनली देखो यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस दिया लॉगिन एचटीएमएल का, लॉग आउट एचटीएमएल का, प्रोफाइल समरी का, फिर फाइल से वही लॉगिन लॉग आउट प्रोफाइल समरी को कनेक्ट किया, फिर वही लॉगिन लॉग आउट, यही इंफॉर्मेशन रहती है कुकी में, लॉगिन लॉग आउट पासवर्ड। आप इसको घर पे जाके देखना, ये तो कोड सर्वर साइड पे है, ये जो इंफॉर्मेशन है वही देखो कैसे हो रहा है। पैकेज लिया, एक इन्होंने पैकेज लिया है अपने आप से जावा टी पॉइंट, फिर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लिया, फिर प्रिंट की राइटिंग की है, फिर सर्वलेट का एक्सेप्शन लिया, फिर एचटीटीपी को कॉल किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर एक्सटेंड किया सर्वलेट को एक्सटेंड करने के बाद टेक्स्ट बाय एचटीएमएल फॉर्म में लिया। हमने बताया था कि इमेज और उसकी इमेज और उसमें नहीं आता है कुकी। फाइनली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के थ्रू उसमें पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर पास करने के बाद अगर जो उसको कुकी का यहाँ पे कुकी क्रिएशन किया है, कुकी रिस्पॉन्स मॉडल में पुट किया है और फाइनली कुकी क्रिएट किया, उसके उसका एजिंग डिफाइन कर दिया कि भाई उसका एज कितना रहना चाहिए, सेक्स मैक्सिमम एज, और उसकी प्रोफाइल की एक्सटेंशन कर दी और उसको रन कर दिया। बस जब आप कोई भी वेब ऐप ये प्रोग्राम जब रन करेगा फाइनली वो कुकी लॉग हो जाएगी। तो ये एक पूरा एडवांस तरीका था, इसको कल हम थोड़ा सा और भी एक्सपेंशन करके बताएंगे। अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कुकी एक्चुअली में कुकी होता क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात अभी हल्की फुल्की से समझ में आई होगी कि भाई क्या है कुकी क्या है।
क्या क्या है कुकी और कैसे काम करता है, व्हाट रियली कुकी इज, ये थोड़ा सा समझ में आएगा। कल इसका हम और एक्सपेंशन से बात करेंगे कि ये चीजें होती कैसे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।